There are more than 20 foundational values for civil services that you should study. But in our syllabus, in the syllabus of GS paper 4, hardly 7 or 8 are mentioned. जनरली बच्चों की स्ट्रेटेजी क्या रहती है जीएस पेपर 4 के लिए कि सिलेबस में जितनी भी टर्म्स मेंशन्ड हैं उन सभी टर्म्स को अच्छे से प्रिपेयर कर जाओ, उन पर क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ एंड यू आर गुड टू गो, राइट। यही आपने भी आज तक सुना होगा कि जो बेसिक बुक्स हैं या देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जितनी भी टर्म्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड हैं सिलेबस में उन्हें सबको पढ़ जाओ। लाइक फॉर एग्जांपल द चैप्टर नंबर 3 एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, द टर्म्स दैट आर मेंशन्ड आर इंटेग्रिटी, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards weaker section, right? Only these terms are mentioned, but there are a lot of more foundational values for civil services जिनके basis पर UPSC ने questions पूछे हैं। Yes. So what I teach more than 20 foundational values for civil services, and here is the list. Here is the list for those 20, more than 20 foundational values. और उन्हें मैंने ग्रुप कर दिया है। ग्रुप नंबर 1, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रॉबिटी. ओनली इंटेग्रिटी इज मेंशन्ड इन आवर सिलेबस। केवल इंटेग्रिटी मेंशन्ड है। वी नीड टू ऑनेस्टी honesty and probity too. Group number 2, objectivity, impartiality, non-partisanship, all of these are mentioned, but not neutrality. हमें neutrality को भी समझना पड़ेगा. Group number 3, empathy is mentioned, but not sympathy. We need to understand sympathy too. Tolerance and compassion. Group number 4, patience, persistence, fortitude, perseverance. Group number 5, commitment, dedication, spirit of service, courage of conviction. Group number 6, accountability, responsibility, transparency, trustworthiness, जो कि चैप्टर नंबर 6 और 7 में हमें पढ़ने को मिलती है। प्रॉपर्टी हमें चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने को मिलता है। अनोनिमिटी इज अ वैल्यू, अ फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट, जो कि मेंशन्ड नहीं है हमारे सिलेबस में एज इन, बट येट हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट। So to understand all these values, don't you think first we need to understand the basic concept of what is a foundational value, right? So in this brief session, I'll try to explain the concept of what is a foundational value, and then we'll try to understand what are the foundational values for civil services. बिकॉज जो कि सिलेबस में हमारे मेंशन्ड है, दीज आर नॉट इनफ। केवल इन्हीं टर्म्स को अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। इनके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिन पर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। सो टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशनल वैल्यूज, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू ब्रेक डाउन दीज टर्म्स। हमें समझना पड़ेगा कि भैया वैल्यूज क्या होते हैं, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ foundational value? To understand that, we first need to understand what are values. So in my previous sessions I have discussed this in details, right? because ये chapter number 3 का concept, ये हम chapter number 3 में आकर पढ़ रहे हैं, but इससे पहले chapter number 1 and chapter number 2 में values क्या है मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। So what are values? Values are nothing but the moral ideals of a society. Ideals of a society, and since society are highly dynamic, ये moral ideals with time and with space change होते रहे, and specifically we need to study, ध्यान दीजिए सिलेबस में लिखा है foundational values for civil services, right? So first let us understand what are foundational values, because what are values? Values are the moral ideals of society, and we have gone through this in details, right? So for those जो कि ये छोटा सेशन देखेंगे बट वांट टू स्टडी दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल्स, आपके लिए भी एक रास्ता है मेरे पास, इस छोटे से सेशन के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, राइट। बट नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर फाउंडेशनल वैल्यूज। सो एज द नेम सजेस्ट, फाउंडेशनल, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव। नींव के बगैर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। सो फाउंडेशनल वैल्यूज के बगैर, फाउंडेशनल वैल्यूज के बगैर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन को अच्छे से नहीं निभा सकता। हमारे सिलेबस में हमने केवल सिविल सर्विसेज की बात करी है, लेकिन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर अदर few of other professions too, right? For that we need to understand the concept that there are some foundational values and there are some supplementary values, right?
या इस तरह पुट करें दैट इफ देयर आर सम वैल्यूज विच आर फाउंडेशनल, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो कि कोर हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, राइट, यानी कि दे आर दी प्राइमरी वैल्यूज, यानी कि इन वैल्यूज के बगैर उस फील्ड में वो व्यक्ति ऑपरेट कर ही नहीं सकेगा। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन को अपनाने के लिए, उस प्रोफेशन में ऑपरेट करने के लिए अगर ये वैल्यूज उस व्यक्ति के अंदर नहीं है, सो दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट। सच वैल्यूज आर नोन एज फाउंडेशनल वैल्यूज which are core to that particular profession, which are fundamental to that particular profession. So if we have foundational values, then definitely we have some other values, some secondary values. If we have primary values, then we have some secondary values. If we have core values, then we have some peripheral values. We have some secondary, some supporting values, right? So कैसे आप समझें व्हाट आर फाउंडेशनल वैल्यूज? कुछ ऐसी वैल्यूज जिनके बगैर कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन में, किसी प्रोफेशन को निभा ही नहीं सकता, उस प्रोफेशन में ऑपरेट ही नहीं कर सकता अगर वो वैल्यूज उनमें नहीं है तो। या इस तरह पुट करें, ऐसी वैल्यूज जिन वैल्यूज को अगर कोई व्यक्ति अपनाएगा, देन ओनली दे आर एबल टू परफॉर्म इन अ सर्टेन प्रोफेशन, राइट? And then supplementary values are such values जो कि उन्हें फर्दर हेल्प करेंगी उस प्रोफेशन में ग्लो करने के लिए, उस प्रोफेशन को बहुत अच्छे से निभाने के लिए। नहीं समझ आया? आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टीचर, राइट? सो अ टीचर और एन एजुकेटर, किस तरह की वैल्यूज जो है वो एक टीचर और एजुकेटर में होनी चाहिए, किस तरह के मॉरल आइडियल्स एक टीचर एजुकेटर में होने चाहिए ताकि वो उस प्रोफेशन को अच्छे से निभा सके, राइट? तो सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति एजुकेट कर रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो खुद उनके पास अच्छा ग्रेस्प होना चाहिए, राइट, उस कॉन्सेप्ट का। सो स्टूडियस होने चाहिए। अगर पढ़ा होगा तभी तो अच्छे से समझा होगा उस कॉन्सेप्ट को, तो स्टूडियस होने चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड होने चाहिए, रिसर्च की हो उस टॉपिक पर, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उस टॉपिक को अच्छे से वो कम्युनिकेट कर सकें, बच्चों को अच्छे से समझा सकें, राइट? गुड कम्युनिकेशन, डिफरेंट नए तरीके ढूंढें अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, राइट? खुद से पहले अच्छे से प्रिपेयर्ड हो टॉपिक, खुद से रिसर्च किया हो, एंड देन अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, राइट? फिर प्रॉपर समय पर करें, एक डिसिप्लिन के साथ करें, राइट? उसके अलावा और आप क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं? कामनेस के साथ करें, बच्चों के साथ भड़के ना, खासतौर पे अगर यंग स्टूडेंट्स को, टीनेजर्स को पढ़ा रहे हैं, राइट? तो एक कामनेस हो उनके अंदर, एक कूलनेस हो, राइट? रिलेट कर सके बच्चों के साथ, ठीक है? दैट कम्स अंडर कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा दैट सम टीचर हु इज एबल टू रिलेट विद स्टूडेंट्स, राइट? दैट इज अनदर इनोवेटिव वे, फाइंडिंग इनोवेटिव वे टू बेटर कम्युनिकेट, राइट? उसके अलावा अगर टीचर अच्छे से प्रेजेंटेबल है, बच्चों को अट्रैक्ट कर पा रहा है, सो एस्थेटिक्स इज अनदर पॉइंट। नाउ आउट ऑफ दीज वैल्यूज, what do you reckon which are the foundational values and which are the supplementary values? So I hope you are able to note down that if a teacher is very aesthetically pleasing, attractive, बहुत अच्छे से बोल रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका कंटेंट अच्छे से रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, अगर उन्होंने खुद से अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है अच्छे से, ठीक है, और वो उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं इफेक्टिवली, बच्चों से रिलेट नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों को रिलेट नहीं करा पा रहे हैं उस टॉपिक के साथ, सो उस एस्थेटिक्स का भी क्या फायदा, उस कामनेस और उस कूलनेस का भी क्या फायदा अगर वो टीचर स्टूडियस नहीं है, तो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, तो उस पंक्चुअलिटी या डिसिप्लिन का कोई फायदा नहीं होगा अगर टीचर जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाए अपने जो भी कॉन्सेप्ट को वो कम्युनिकेट, जो भी कॉन्सेप्ट को वो पढ़ाना चाहते हैं। तो so here you can see that being studious, being research oriented are the foundational values
टू बिकम अ टीचर और टू बिकम एन एजुकेटर? ये तो मस्ट है फाउंडेशनल वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज विच आर मस्ट, जो कि होनी ही चाहिए, उसके अलावा काम ही नहीं चलेगा. एंड सप्लीमेंट्री वैल्यूज, दो इट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर सिलेबस, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसे. सप्लीमेंट्री वैल्यूज आर द वैल्यूज जो कि फाउंडेशनल वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज को फर्दर सपोर्ट करती हैं. यानी कि एक टीचर को बनाती हैं उसकी स्टूडियसनेस, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी इनोवेशन इन कम्युनिकेशन स्किल्स, बट उनकी पढ़ाने के स्किल्स को फर्दर एनहांस करती है उनके एस्थेटिक्स, उनकी पंक्चुअलिटी, उनका डिसिप्लिन, उनकी कामनेस, उनकी कूलनेस. सो दीज आर सप्लीमेंट्री वैल्यूज, राइट. एक और एग्जांपल लें. since in our syllabus we need to understand the foundational values for civil services. So what are civil services? All the services जो खास आमतौर पर हम क्या समझते हैं इंडिया में, सिविल सर्विसेज आर द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज विच आर नॉट ऑफ जुडिशियल नेचर और विच आर नॉट लिंक्ड टू आर्म्ड सर्विसेज, राइट. सो फॉर अ जज, बिकॉज हमें सिविल सर्वेंट्स के लिए तो पढ़ना ही है डिटेल में फाउंडेशनल वैल्यूज को, तो जज के लिए क्या हो सकती हैं फाउंडेशनल वैल्यूज, राइट. व्हाट शुड बी द फाउंडेशनल, या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन फ्यू इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो कि जज के लिए आप कह सकते हैं. सो जज शुड बी, लेट्स से पंक्चुअल होना चाहिए जज. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी जुडिशरी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है ना. जज को इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि नए नए तरीके वो खोजें, राइट. टेक्नोलॉजी से अगर वो सेवी हो, नए नए तरीके, नए नए इनोवेटिव मेजर्स अगर वो लें, राइट, ताकि जल्दी से जल्दी वो केसेस को निपटा सकें, जुडिशरी के ऊपर जो बर्डन है उसे जल्दी से जल्दी कम कर सकें. दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज जो कि जज में होनी चाहिए. बट क्या ये वैल्यूज एक जज को जज बनाती हैं? नहीं. फाउंडेशनल वैल्यूज विल मेक जज अ जज. सो व्हाट आर दोस फाउंडेशनल वैल्यूज? जज को क्या होना ही जरूरी है? तो जज में इंटेग्रिटी होनी चाहिए, राइट. जज में नॉन पार्टिसनशिप होना चाहिए, जज में न्यूट्रलिटी होनी चाहिए. दीज आर द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर अ जज, राइट. जज में आप कह सकते हैं ऑनेस्टी होनी चाहिए, जज में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जज में ऑनेस्टी होनी चाहिए, जज स्टूडियस भी होना चाहिए ताकि डिफरेंट केसेस को वो एनालाइज करे, स्टडी करे. दीज आर द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर जज एंड दीज आर द सप्लीमेंट्री वैल्यूज दैट मेक्स देम बेटर जज. But what makes them a judge are the foundational values. Similarly, अगर हम एक armed forces personnel की बात करें, so what makes an armed forces personnel? What are the foundational values for them? So courage होना बहुत must है. Courage किस तरह का? Courage to sacrifice their own life in the face of danger. Courage to sacrifice, courage to self is that there are many different type of courages. So for armed forces personnel, courage to sacrifice themselves is the foundational value. उसके बाद discipline. Without discipline काम नहीं चलेगा armed force personnel का, because a platoon, a company, a regiment, a division is only as strong as its weakest link, right. So physical fitness, then discipline, right. These are the, and courage, these are the foundational values for an armed forces personnel, right. एक armed forces personnel को पूरी courage के साथ, पूरी fitness के साथ chain of command को follow करना है. Because अगर chain of command को follow नहीं करेंगे, then the armed forces will not function properly what they are intended to do, right. अगर एक armed forces personnel compassion दिखाएगा, उनको अगर order है आप border पर जाइए और दुश्मनों पर गोली चलाइए, और वहां पर जाकर अगर वो सोचने लग जाए, empathize करें दुश्मन के साथ कि ये भी तो एक व्यक्ति है, इसका भी तो एक बैकग्राउंड, इसका भी तो एक परिवार है, ये भी तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, इसके भी तो बाल बच्चे हो सकते हैं, राइट, इसकी भी तो एस्पिरेशंस होगी, इसका भी तो जीवन है, इसका भी तो जीने की इच्छा है. अगर इस तरह के सवाल आ गए, सो हाउ विल दे शूट, हाउ विल दे प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स. सो डिसिप्लिन, राइट, फिजिकल फिटनेस, करेज,
These are the foundational values for an armed forces personnel, right? So a civil servant is someone who is not a judge, someone who is not a armed forces personnel, right? Someone who is also not a entrepreneur in a private sector. So entrepreneurs के क्या foundational values हो सकते हैं? Entrepreneurs में भी courage होना बहुत जरूरी है, लेकिन किस तरह का courage? Courage to take risk, courage to enter into the open market and take risk. रिस्क लेकर अपना पैसा लगाना, रिस्क लेकर अपने शेयर होल्डर्स का पैसा लगाना। एक एंटरप्रेन्योर के लिए फाउंडेशनल वैल्यू, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे बिजनेस में, कैसे मार्केट, अगर यही सोचते रहेंगे कि भैया बहुत रिस्की है बिजनेस करना है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बिकॉज देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, ओनली कंपटीशन, राइट? सो अगर करेज नहीं होगा टू टेक रिस्क, सो हाउ विल दे ग्रो, राइट? अगर इनोवेशन नहीं होगा, सो हाउ विल दे बीट द कंपटीशन? अगर वो इनोवेशन का यूज नहीं करेंगे तो मैंने क्या कहा, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी बट कंपटीशन, यानी कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स वो सामान बेच रहे होंगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे जो ये एंटरप्रेन्योर करना चाहता है। सो इनोवेशन होगा तभी उनका प्रोडक्ट या उनकी सर्विस अलग से आके निखरेगी, अलग से चमकेगी, राइट? सो दिस इज अनदर फाउंडेशनल वैल्यू, राइट? देन अनदर यू कैन ऐड, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट को समझा ही नहीं, अगर अपने कंज्यूमर को समझा ही नहीं, राइट? अगर कंज्यूमर की मेंटेलिटी नहीं समझी कि वो क्या चाहते हैं, देन हाउ दे विल बी एबल टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज? सो एम्पैथी इज अनदर फाउंडेशनल वैल्यू फॉर एंटरप्रेन्योर। देन फाइनली परसिवरेंस। इंडिया में मार्केट में कहा जाता है पहले 2 साल तो घाटा ही उठाना पड़ता है, तीसरे साल हो सकता है कि दैट यू आर एबल टू ब्रेक इवन, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट आप बराबर कर सके, और देन यू आर मेकिंग प्रॉफिट, देन यू विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट। सो परसिवरेंस, लगन से लगे रहना, परसिस्टेंटली एफर्ट लगाते जाना, लगातार रिस्क लेना, लगातार इनोवेट करना, लगातार एम्पैथाइज करना, और लगातार लगन से काम मेहनत करते जाना। दीज आर दी फाउंडेशन, दीज आर सम ऑफ द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर एन एंटरप्रेन्योर, राइट? यानी कि ऐसी, सो आप आई गेस कॉन्सेप्ट समझे होंगे। फाउंडेशनल वैल्यूज आर सच वैल्यूज जिनके बगैर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में नहीं घुस सकता। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो एटलीस्ट ये वैल्यूज उनके अंदर होनी ही चाहिए, ये मॉरल आइडियल्स उनके होने ही चाहिए। अगर किसी को आर्म्ड फोर्सेज में जाना है तो ये वैल्यूज, ये वर्च्यूज इनफैक्ट उनके अंदर होनी ही चाहिए। अगर किसी को जज बनना है तो ये वैल्यूज जो है वो, ये वर्च्यूज उनके अंदर होनी ही चाहिए। नाउ ध्यान दीजिए, मैं वैल्यूज के साथ एक वर्च्यू टर्म भी इस्तेमाल कर रहा हूं, राइट? सो in these concept videos I'll try to bring as many these little concept as possible, but if you want to understand these in greater details, make sure that you join my course, make sure कि आप मेरे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, right? Because as far as foundational values for civil services are concerned, हमारे सिलेबस में केवल ये mentioned है, integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion, right? That means these are, according to UPSC, what they have provided in our syllabus, that these are the foundational values, और these are the values जो कि एक व्यक्ति में होनी ही चाहिए अगर वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, ये मस्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से इसके अलावा देयर आर अ लॉट मोर वैल्यूज जो कि सिविल सर्वेंट में होनी ही चाहिए, मस्ट है, प्राइमरी है, फाउंडेशनल है, फंडामेंटल है, ताकि वो एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन सके। सो इंटेग्रिटी का अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो ऑनेस्टी और प्रोबिटी को समझना जरूरी है। ऑल्दो प्रोबिटी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ते हैं, बट वी विल ट्राई टू कनेक्ट चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6 एंड 7। सो टॉपिक और चैप्टर 3, 6 और 7 को कनेक्ट करके हम पढ़ते हैं फाउंडेशनल वैल्यूज और सिविल सर्विस। दैट्स माय इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच, राइट? सो सिलेबस में मेंशन्ड है ऑब्जेक्टिविटी, राइट? देन impartiality and non-partisanship, but we must understand neutrality too, right? सिलेबस में मेंशन्ड है tolerance and compassion for the weaker section, but we must understand empathy and sympathy too, because these are also foundational values for civil servants, right?
सिलेबस में मेंशन है परसिवरेंस, बट परसिवरेंस पेशेंस परसिस्टेंस फोर्टिट्यूड से मिलकर बनेगा, राइट? Commitment, dedication, spirit of service, courage of conviction, few of these are mentioned in our syllabus. But we will go into details of all these values. These are mentioned in chapter number 6 and 7. Anonymity is not mentioned anywhere. But these are foundational values for a civil servant, जिन्हें आपको केवल पढ़ना नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी में उतारना है. कोशिश करनी है कि उनको केवल वैल्यूज केवल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तरह ना पढ़ें, अपने कंडक्ट में उतारें, राइट? आपके कंडक्ट में वो रिफ्लेक्ट हो, आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो, राइट? आप केवल वैल्यूज ना बना के रखें, उनको वर्च्यूज के लेवल तक लेकर जाएं. सो आई होप ये सभी टर्म्स आपके सर के ऊपर से गुजर रही होंगी अभी, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स एंड मोर इन डिटेल्स, बिकॉज दीज आर जस्ट, ये तो मैंने आपको केवल बेसिक एग्जाम्पल दिया दैट व्हाट आर फाउंडेशनल वैल्यूज. But as we move forward, the group number 1 is the most important, that is integrity, honesty and probity. And as we move forward with topic by topic, आपको further और better understanding develop होती जाएगी that what are the foundational values for civil service. So to get the concept clarity, make sure that you join my course, the UPSC CSC GS Pre Plus Main Foundation course, right? मेरे द्वारा लिया जाएगा GS 1, 2, 3 and 4 कवर करूंगा मैं अपने इस GS फाउंडेशन कोर्स में. मेक श्योर कि अगर आप डिटेल्स चाहते हैं अबाउट दिस कोर्स तो इस वीडियो के नीचे जो पिन्ड कमेंट है या इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मेरा टेलीग्राम आईडी, राइट? ऑल्दो इफ यू आर कनेक्टेड विद मी थ्रू टेलीग्राम, आप मुझे डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए आप मुझे, राइट? टेलीग्राम पर या चाहे इंस्टाग्राम पर. और अगर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, सो आप मुझे डायरेक्टली वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन ग्रेटर डिटेल्स एंड मोर. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर दिस स्मॉल वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट किसी और कॉन्सेप्ट की वीडियो में, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आपको बिट्स बाय बिट्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, लाइक फॉर एग्जांपल वैल्यूज एंड वर्च्यूज क्या होती हैं, ठीक है? इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड प्रोबिटी क्या है, राइट? स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या है, करेज ऑफ कन्विक्शन क्या है, इस तरह की छोटी छोटी बिट्स में मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में ये छोटे छोटे बिट्स एक्सप्लेन कर दूं. बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड थॉरली ऑब्जर्व अगर आपको इन्हें करना है, सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन माई कोर्स, राइट? Because there are a lot of sources, there are a lot of self-study materials, but what I think that बहुत सारे students को तभी समझ आता है जब कोई उन्हें पढ़ाए, जब कॉन्सेप्ट उनके क्लियर करे, कोई एक आवाज़ हो जो उनके कान में गूंजे जब वो कोई बुक पढ़ रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट को कहीं पढ़ रहे हो. सो आई वॉन्ट, अगर आपको लगता है कि मेरी वो आवाज़ जो है वो आपकी हेल्प कर सकती है, सो मेक श्योर दैट यू जॉइन माई कोर्स एंड मेक श्योर टू शो मी सम सपोर्ट बाय शेयरिंग दीज वीडियोज़. कुछ नहीं लगेगा आपका. सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, शेयर दीज वीडियोस एज मच एज पॉसिबल, लाइक करें इन वीडियोस को एंड ड्रॉप योर कमेंट्स. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल. मिलेंगे इसी तरह की छोटी सी अनदर वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.